Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We will start this podcast in the name of dialogue, the gracious Almighty who created man from the clot of blood, the most beneficent and merciful. Welcome, man. Thank you so much. Today we want to discuss about the concerns for our professionals. And this concerns is thoroughly related about the knowledge. And obviously, we are very glad to see spreading knowledge because knowledge is those assets of man which cannot be stolen, blessed, or destroyed. It is such a wealth, more you spend, more it increases. Property may lose, money may destroy, but character, health, and good judgment will always be in demand under ordinary condition. So, ma'am, the first concerning question from the professional is this: the limitation in the bond creating with the child. What should be the protocols? Right. So, basically, I'm going to talk in Urdu and English both. Yes. देखिए, जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं ना, तो आप अगर मैं आपके पास आऊँ और मैं आपको नहीं जानती, if I don't know you, so and I come and say, come on, Junaid, let's do this or let's pick up a phone. You're not going to do that, right? So we have to build a bond with the child. We have to make some pairing with the child, right? तो उस पेयरिंग को बिल्ड करने के लिए हमें जो है बच्चे के साथ खेलना पड़ता है, प्यार से बात करनी पड़ती है और उसके बाद नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में वो करना पड़ता है जो बच्चा कर रहा है, यानी कि हमें बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है. तो दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग, राइट? सो आई रिमेंबर कि आज से पता नहीं कितने साल पहले, कोई मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले जब मैं BCBA बन रही थी, एक्चुअली 15 साल पहले, तो मेरे एक बहुत ही अच्छी BCBA थी एंड आई स्टिल रिमेंबर हर नेम वाज लिज. She made me work with a high functioning autistic kid और उसने मुझे कहा बस इसके साथ खेलो बच्चे के साथ. I was very enthusiastic at that time and I'm like I want to learn ABA. यार मेरे सारे ABA सीख लेने. उसने कहा खेलो बस इसके साथ, बाहर जाओ, वॉक्स करो, बाइकिंग करो और स्विमिंग करता है बस उसके साथ करो, खेलो बस उसके साथ, बॉल से खेलो, ड्राइंग्स करो. मैंने 15 दिन तो किया, उसके बाद मैं भी बोर हो गई. मैंने कहा आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू ABA. लिज प्लीज टीच मी. शी इज लाइक नो, जस्ट प्ले विद हिम. 2 हफ्ते और गुजर गए, मैं खेल रही हूँ, कभी मैं पॉन्ड पे जा रही हूँ, कभी मैं पत्थर फेंक रही हूँ बच्चे के साथ नदी के अंदर, कभी मैं डक्स के साथ खेल रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, आई डूइंग सिली थिंग्स विद हिम. एंड इट वाज अ मंथ लेटर, शी इज लाइक okay. What about another week? I'm like, Liz, I don't want to play. This is just like babysitting. I really want to do some ABA. तो उसने कहा कि नहीं, one. So I did for another week. After 6 weeks, she gave me the initial plan for that child. And believe it or not, जो चीज़ें उसने मुझे बताई करने को, मैंने उस बच्चे के साथ 3 घंटे का सेशन दिया. इतनी अच्छी compliance उस बच्चे की थी कि whatever I asked him to do, he did it. And that's when she explained to me that this is called as instructional control. Now you have paired so well with this child that you have full instructional control over him. And now whatever you're going to ask him to do, he's going to do. So whenever we are working with a child, we have to build compliance through pairing. Pairing में कुछ भी हो सकता है. आप उसके साथ खेलें, बच्चे के साथ बच्चा बने, उसको cuddle करें, hug करें, उसको आप गुदगुदी करें, पीकाबू खेलें, उसके साथ बाहर जाके खेलें. So we have to build a bond with that child. But yes, there are some limitations, and the limitations are that we have to be ethical, we have to be empathetic, and we have to make sure that what our boundaries are as a professional. That's about it. It's quite efficient कि हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें सीखने को मिलता है. लेकिन मैम एक क्वेश्चन जो हमारे सोसाइटी के एस्पेक्ट से है, obviously you are working with a फॉरनर इज वेल, यूनाइटेड स्टेट्स में भी काम करते हैं, उनके प्रोटोकॉल, उनके नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन और जो हमारे कल्चर का थॉट का डिफरेंस है, वहाँ आप हमारे प्रोफेशनल को क्या रिकमेंड करेंगे? क्या अवेयरनेस एंड काउंसलिंग स्ट्रेट अवे बहुत इंपॉर्टेंट है पहले पेरेंट्स की, या डायरेक्ट हम अपने प्रोटोकॉल्स के जरिए ही उनको मैसेज कन्वे करें? फॉर पेरेंट्स इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम उनकी काउंसलिंग भी करें और उनको अवेयरनेस भी क्रिएट करें, क्योंकि हमारे पास हर तरह के पेरेंट्स आते हैं. हमारे पास सिटीज़ से भी पेरेंट्स आते हैं, हमारे पास विलेजेस से भी पेरेंट्स आते हैं, हमारे पास सबर्ब से भी आते हैं, और उनका जो पूल ऑफ नॉलेज है वो लिमिटेड है. यानी कि आइदर इट्स फ्रॉम द गूगल, आइदर इट्स फ्रॉम यूट्यूब और टिकटॉक. ठीक है, और टिकटॉक तो मैं कहती हूँ इतना बड़ा जुल्म है ना इस दुनिया में कि मैं बता नहीं सकती. वो जो वहाँ से उनको नॉलेज मिलती है वो आके हमें बताते हैं. ठीक है, सो आई बेसिकली थिंक दैट एज अ प्रोफेशनल, एज जो कुछ भी हमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने सिखाया है, जो हमने रिसर्च में पढ़ा है, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पढ़ा है,
हमें वो आसान करके अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, हम किस तरह से बच्चे के साथ पेयर करेंगे और किस तरह से ये बच्चे दे आर kids who are neurodevelopmentally challenged. ठीक है ना, they are different from neurotypical kids, but they have neurodevelopmental disorders. So इनके साथ डील करने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो अगर क्योंकि इन बच्चों में सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, इन बच्चों में टैक्टाइल इश्यूज भी होते हैं, तो अगर ये अब जिस तरह मैं परसों की बात है, आई वाज वर्किंग इन इस्लामाबाद विद अ किड एंड शी केम एंड शी सैट इन माय लैप। अब मैं उसको गोद से उतार तो नहीं सकती, अगर मैं उसको गोद से उतारूंगी तो वो रोना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई एम अ मदर, आई लव किड्स आल्सो, सो आई हग्ड हर एंड देन आई वर्कड विद हर, बट दैट डजंट मीन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन व्हाट आई एम डूइंग विद हर एंड देयर इज नो बाउंड्री ओवर देयर, because basically we teach kids with autism spectrum disorder to have that empathy, to have that human emotion. We're not building robots, we are building human beings, right? So again, it all depends on scenario to scenario. We have to create awareness in our parents. We have to teach them, educate them. हमें उनको ABA की trainings भी देनी है, speech की trainings भी देनी है, OT की trainings भी देनी है. We have to tell them that how we work with these kids, and then tell them how to work with the kids. Yes, and that's quite informative as well, especially for the young professionals coming in the field. Then, few last questions. What is your time? The question is building of acceptance, like parents के अंदर acceptance towards therapist, क्योंकि therapist somehow अपने kids के साथ emotional build bond कर लेते हैं, and that is quite natural. Obviously these are humans as well. When they see a child, जब एक बच्चे को देखते हैं खुशी से उनके चेहरे पे smile आ जाना, उनको hug करना, cuddle करना और उनको उठाना, sometimes swings देना, तो वो एक acceptance build करना. Some parents they do not wish their child to be touched in any manner. तो क्या हम एक्सेप्टेंस कैसे बिल्ड करेंगे? कुछ की पॉइंट्स उस हवाले से बताइएगा। देखें, ये एक बहुत ही फाइन लाइन है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हमारे बच्चे ना थोड़े डिफरेंट हैं, दे आर नॉट लाइक न्यूरो डेवलपमेंटल किड्स, ठीक है, तो दे आर न्यूरो डिवर्स किड्स। अब इसमें अगर कोई बच्चा आता है आपके पास आके बैठता है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एथिकल अबाउट इट, यू आर टीचिंग देम सेफ स्पेस. They know that what a personal distance is, but that also comes later. क्योंकि देखिए हर चीज़ आपने पहले उनके साथ पेयर करना है, पेयर करने के बाद उनको चीज़ें सिखानी है और उसके बाद उनको पर्सनल स्पेस, सेफ स्पेस सिखानी है, ताकि जब वो स्ट्रेंजर्स के इर्द गिर्द हों तो कोई उनका फ़ायदा ना उठा सके, जिसमें प्राइवेट बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, गुड टच बैड टच आ जाता है और सारी जो है वो सेक्शुअल एजुकेशन भी हो जाती है। लेकिन वो आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप बच्चों को आप सिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपने बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स उनके सिखाने होते हैं, गुड टच और बैड टच सिखाना होता है और उनकी सेफ स्पेसेस सिखानी होती है, ठीक है। सो सेफ स्पेस करिकुलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स। लेकिन उसमें अगर कोई बच्चा आता है और आपको सपोज आपके बालों को टच कर रहा है, दाढ़ी को टच कर रहा है, हेयर को टच कर रहा है, आपकी गोद में आके बैठ के आप एकदम से उसको नहीं उठा सकते, बिकॉज वो फिर आप बच्चे के लिए अवर्सिव हो जाएंगे। हमने बच्चे के लिए अवर्सिव नहीं होना। येस, वी वांट टू हैव अ पर्सनल स्पेस, वी वांट टू टीच देम सेफ स्पेस, बट ये आहिस्ता आहिस्ता आप सिखाते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एकदम से जो है ये सारा कुछ करना शुरू कर दें। और दूसरा, हमें पेरेंट्स को ये बात सिखानी है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है हर चीज़ में, कि दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग विद द चाइल्ड, दिस इज़ व्हाट द चाइल्ड डज, डू यू एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट, एंड इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट वी कैन चेंज द थेरेपिस्ट और वी कैन वर्क इन अ डिफरेंट मैनर। डोंट वर्क इन क्लोज स्पेसेस, वर्क इन बिगर स्पेसेस, ताकि वहाँ पे ज़्यादा जगह हो, बच्चा खेल सके बड़ी जगह में, ठीक है ना, ज़्यादा आपके करीब ना आ सके। इस तरह से हमें काम करना चाहिए बच्चे के साथ। Thank you so much, madam. Last question, which is very important and somehow very related to our norms, laws as well. पाकिस्तान में मैम एक लॉ है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है स्पेशली, और प्रोफेशनल्स की बाउंड्री को जिसे कहते हैं कि एक ठीक ठाक समझने की ज़रूरत है। वो उस दफ़ा का नाम है 377B, और अगर हम उसकी रीड आउट करते हैं हेडलाइंस को, तो उसमें यही है कि गोद में उठाना, हाथ लगाना, चूमना, गले लगाना, पकड़ के रखना, पकड़ के बिठाना। तो ये जो एक कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजी है कि जब एक थेरेपिस्ट, एक प्रोफेशनल अपने किड्स के टुवर्ड्स ये बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो एक सोसाइटी का एक आम पर्सन है, एग्जाम्पल लेमैन है, या एक पेरेंट्स हैं जिनके थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज में इस चीज़ को किसी ने ट्रिगर कर दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, सो हाउ डू वी लीव दैट सिचुएशन? राइट, देखिए
हम लोगों की जो माशरा है ना, उसमें हम लोग ऐसी चीज़ का एक बतंगड़ बना लेते हैं जो होती भी नहीं है कई दफ़ा। सो जो ये 377 की जो शिक है ना, जो ये अभी आई है लॉ में, ये हमारे नॉर्मल बच्चों के लिए थी, 18 साल से कम बच्चे जो थे, और ये उस वक्त आई थी जब ज़ैनब का एक केस हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी जिसको उठा लिया गया था, फिर वो उसके साथ ज्यादती का शिकार हुआ था, और वो ब्लैक नेट पे, डार्क नेट पे उसकी वीडियोस दिखी थी। उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें बच्चों के जो रूल्स बने थे उसमें आई, ठीक है। उसके बाद ये रूल बना था कि जी आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, चूम नहीं सकते, विच इज़ राइट, बिकॉज आपने अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ठीक है। लेकिन जो एक ऐसा माहौल है जिसमें कि आपके पास बच्चे स्पेशल नीड्स के आ रहे हैं, ठीक है, जिनको बहुत से ऐसे टैक्टाइल इश्यूज़ हैं, सेंसरी इश्यूज़ हैं, जिसमें कैमरास भी लगे हुए हैं, आपके पास सब कुछ वहाँ पे मौजूद है, ये उन बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि हमारे बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो तो खुद आके आपको कभी हाथ लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, ये हमारे बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता। ये नॉर्मल बच्चों के ऊपर, न्यूरो डेवलपमेंटल बच्चों के ऊपर अप्लाई करता है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। 377 की दफ़ा हमारे बच्चों के ऊपर बिल्कुल नहीं लगती, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो चल भी कूद नहीं सकते, उठ भी कूद नहीं सकते, उनको उठाना भी पड़ता है, बाथरूम भी ले जाना पड़ता है। उसके अलावा हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनको हम प्रॉम्प्ट के साथ काम कराते हैं, जिसमें फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट होती है, पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट होती है। उनको हमें टॉयलेटिंग भी सिखानी है, कपड़े पहनना भी सिखाना है, ईटिंग भी सिखानी है, 10,000 चीज़ें सिखानी है, तो उसमें हम कैसे हाथ लगाए बगैर उनके साथ काम कर सकते हैं। सो दिस डज नॉट अप्लाई टू आवर किड्स एट ऑल। थैंक यू सो मच मैम। आई होप आवर प्रोफेशनल्स, रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स, आपको एक की मैसेज, एक थोड़ा मैसेज आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके अपने बच्चों के साथ काम करने के लिए, जो आज ये एक इंस्ट्रक्शनल, एक इन्फॉर्मेटिव है। आप इस वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा, और प्लस अपने कंसर्न्स, इस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाफिज़।